Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to discuss a novel Lord of the Flies which has been written by William Golding, a Nobel Prize winning writer who won Nobel Prize in 1983 and he has also won a Booker Prize for literature in 1980. This work was published in 1954 and it was his first novel. It is a very amazing novel. It deals with the life of some adolescent boys who find themselves on an inhabited island and how they govern themselves and what humans generally do when they are totally free, when they have totally freedom and when there is no restrictions upon them, but the real nature of the humans, that is what is it is portrayed by the novelist William Golding in this novel. So let us have some basic facts about this novel. So the concept is obviously postmodernism, and the location or the setting of this novel is Pacific Ocean, unknown island. And then we have some important characters like Ralph, who is 12 years old. He's a leader, positive attitude. He's alive, obviously. And then Simon, who is an intelligent boy, but he dies later. And then we have Piggy, who is a sensible boy, is an intelligent boy as well, who shows logic and scientific aptitude, and he also dies later in the novel. And then we have Jack, who is the villain of the novel, and he is leader of the choir, who is the hunter groups, and he has negative outlook, and he also remains alive in the novel. Then we have some minor characters like Robert, Morris, Bill, Phil, Roger. These are all minor characters, and we have two more characters, that is Sam and Eric. They are twins and they are famously known as Sam and Eric. Okay, so these are some of the basic facts of this novel. If I talk about the themes of the novel, the themes are loss of identity, the need of civilization, innocence versus savagery, and as I told you earlier, the genre is the postmodernistic novel. So it's a very important novel, and it has been one of the major reasons behind William Golding winning the Nobel Prize. Okay, so let us discuss the story of this novel in detail right now. So before we start discussing the story of the novel, let me tell you that the idea of this novel came from where came from the idea of this novel. So once William Golding was reading a novel, वो एक novel पढ़ रहे थे, द कोरल आइलैंड अ टेल ऑफ द पैसिफिक ओशन, 1857 में इसे पब्लिश किया गया था, जिसे लिखा था आर.एम. बैलेंटाइन ने. ठीक है, इसमें क्या था, इसमें कुछ यूथ लड़कों की कहानी, अनरिस्ट्रिक्टेड डिपिक्शन दी गई थी कि जो लड़के जब अनइनहैबिटेड आइलैंड पे पहुंचेंगे तो वो किस तरह से मजे करेंगे. तो ये एक अनरिस्टिक अप्रोच थी, और विलियम गोल्डिंग ने अपनी वाइफ से कहा था कि क्यों ना वो एक ऐसा नॉवल लिखें जिसमें कि जो बच्चे हैं अक्सर जिंदगी में वो क्या करते अगर वो एक ऐसे अनइनहैबिटेड आइलैंड में पहुंच जाते. तो ठीक है, तो उन्होंने इसी तरह से वो आइडिया निकला था उनके इस नॉवल का, और कुछ जो इस नॉवल की कहानियां हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो उस नॉवल से मिलते जुलते हैं. जैसे कि जो नेवल ऑफिसर कम को बचाना, और जब वो बच्चे पहले उस पैसिफिक ओशियन पे या अनइनहैबिटेड आइलैंड पे पहुंचे थे तो उनका नेचर सिचुएशन कैसी थी. तो वो ये कुछ तरीके हैं जो कुछ सिचुएशंस हैं जो मैच करते हैं द कोरल आइलैंड नॉवल से, जिसे आर.एम. बैलेंटाइन ने 1857 में पब्लिश करवाया था. इसके अलावा तीन मेन कैरेक्टर्स जो थे, जो प्रोटैगनिस्ट थे द कोरल आइलैंड नॉवल के, वो इसमें भी पाए जाते हैं. वो है राल्फ, पिगी एंड जैक. दोस्तों ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा गया है, इसी रिगार्डिंग में आपको बता रहा हूँ. ये जो प्रोटैगनिस्ट वाला क्वेश्चन है ये नेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. इसके अलावा भी नेट का ये फेवरेट नॉवल है, और इस नॉवल में से नेट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस नॉवल की समरी जानना, स्टोरी जानना. चलिए डिस्कस करते हैं. तो दोस्तों जब कहानी की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है. 1940s और 1950s के आसपास का ये समय है, और एटॉमिक वॉर चली हुई है, और ब्रिटिश आइलैंड से ब्रिटेन से कुछ बच्चों को जो है इवैक्यूएट किया जा रहा है किसी और प्लेस पे. ठीक है, और वहां पे क्या होता है, इनके जो हेलीकॉप्टर था उस पर अटैक हो जाता है, और उसकी वजह से ये जो बच्चे हैं खुद को पाते हैं एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पे. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ यही बच्चे बचते हैं और कोई भी नहीं बचता है. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन फिर भी ऐसा ही है जो हमें नॉवेलिस्ट ने बताया है. सबसे पहले हमारी जो मुलाकात है, हमें दिखाई देते हैं नोवेल पे राल्फ और पिगी. ठीक है, राल्फ और पिगी एक साथ आते हैं, और राल्फ को एक कॉन्च शेल दिखाई देता है,
और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। और राल्फ पिगी जो है वो राल्फ से बोलता है कि उसे ये कॉन्च शेल बजाना चाहिए ताकि जो नियर बाई चिल्ड्रन है वो भी आसपास आ जाए, तो एक जगह पे इकट्ठे हो जाए। राल्फ वैसा ही करता है, वो उस कॉन्च शेल को बजाता है और फिर बाकी सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और सभी डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे रहने के लिए जब तक कि उन्हें कोई रेस्क्यू ना कर ले तब तक यहाँ पे रहने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाना चाहिए। इसीलिए वो सोचते हैं कि सबसे पहले हमें लीडर चुनना होगा, और सभी बच्चे जो हैं राल्फ के हक में वोट करते हैं। राल्फ को ग्रुप का लीडर चुना जाता है। राल्फ क्या करता है, राल्फ जैक एंड अदर उसके कुछ और बच्चे उसको देता है कि तुम लोग क्या है, तुम लोग करोगे हंटिंग। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ बच्चों को और जैसे साइमन को और उसके साथ कुछ और बच्चों को बोलता है कि आप लोग ऐसे करो, माउंटेन्स के ऊपर जाके आग जलाओ ताकि अगर कोई नियर बाई शिप या कोई हेलीकॉप्टर जाए तो उसे हमारे बारे में पता चल जाए और हम जो है हम सेफ हो जाएं, वो हमें बचा ले आगे। ठीक है, और राल्फ जो खुद है वो नॉर्मली पिगी के साथ मिलके वो काम करने लगते हैं, जनरली काम, जैसे हट बनाना या फिर कुछ और काम, आग जलाना। जैसे वो पिगी का चश्मा लेके आग जलाने की कोशिश करता है, पिगी के चश्मे की हेल्प से वो आग जलाते हैं। अब जैक और उसके हंटर जो है वो जंगल में चले जाते हैं पिग्स को ढूंढने के लिए, हंटिंग करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोई भी हंटिंग जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई है। इसके बाद क्या होता है कि जल्दी ही जो ग्रुप्स हैं उनमें क्रैक्स कैन बी सीन इन दियर ग्रुप्स। बहुत ही जल्दी उनमें क्रैक्स दिखाई देते हैं कि वो जो जैक और हंटर्स हैं वो राल्फ की बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि राल्फ जो है एक सेंसिबल फेलो है और पिगी और साइमन राल्फ की साइड हो जाते हैं और बाकी के जो हंटर्स हैं वो जैक की ओर साइड हो जाते हैं। जैक को ही ज्यादातर वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जैक जो है, जैक लीडर बना जाता है ग्रुप का। जैक राल्फ की कोई भी बात नहीं मानता है। मतलब जैक और पिगी और साइमन जो है वो लोग अपने हट वगैरह बनाने में लगे हुए हैं ताकि सोने का जुगाड़ हो सके, और दूसरी जो बच्चे हैं वो खेले जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये लोग इतना काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो है उनको ये भी काम दिया गया था कि वो आग का ध्यान रखेंगे, लेकिन किसी ने भी आग का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा और आग जो थी वो धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई, जिसकी वजह से एक बच्चा वहां पे डिसअपियर भी हो जाता है। ठीक है, किसी को पता नहीं चलता है लेकिन एक बच्चा डिसअपियर भी हो जाता है। प्रोबेबली वो लोग समझते हैं कि वो जो है आग में जल के मर गया होगा। ठीक है, तो उनकी लापरवाही की वजह से ये काफी नुकसान हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, बच्चों को, कुछ बच्चे जो हैं जो लिटलन्स के नाम से जाने जाते हैं, वो जब ऊपर जाते हैं तब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ऊपर कोई ना कोई बीस्ट है, कोई जानवर है, ऐसा खूंखार जानवर रहता है या कोई गोस्ट टाइप रहता है ना, कोई बीस्ट रहता है उसके ऊपर। और वो आके नीचे राल्फ और जैक को बताते हैं, और जब राल्फ और जैक ऊपर जाते हैं उसे देखने के लिए तो वो देखते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं होता है, और वो आके बोलते हैं कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, अब रात को फाइट चलती है एरोप्लेन के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चली हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। तो एक पैराशूटिस्ट जो है वो ऊपर से आके नीचे गिरता है, जहां पे जनरली माउंटेन्स के ऊपर आग जलाई होती थी सैम और एरिक ने। ठीक है, क्योंकि सैम और एरिक जिसको हम जानते हैं नाम से, वो उस टाइम पे सो रहे थे, तो उन्हें उस फाइट के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि वो जो पैराशूटिस्ट है वो कब आया। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं ऐसे बंदा पड़ा हुआ है कोई, और जो पैराशूट है वो ऐसे हिल रहा है, आवाज कर रहा है, तो वो डर जाते हैं और वो नीचे आके सभी को बताते हैं कि वो जो बीस्ट है वो ऊपर उन्होंने देख लिया है, वो ऊपर पड़ा हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, तो एक बार फिर राल्फ और जैक जाएंगे और देखेंगे कि वो समझते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो उन्हें वहां पे नहीं दिखाई देता है कि जो भी बीस्ट है, दे डोंट थिंक दैट इट एग्जिस्ट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैक और हंटर्स जो हैं वो अलग हो जाना चाहते हैं। एक बार फिर जैक उसकी अथॉरिटी को, जब वो वहां से उस बीस्ट को देख के आते हैं कि बीस्ट वहां पे नहीं है, और जब वहां पे वो पहुंच जाते हैं तो फिर वो उसकी अथॉरिटी को कहीं ना कहीं चैलेंज करता है, राल्फ की अथॉरिटी को, कि तुम्हें लीडर नहीं होना चाहिए, तुम कमजोर हो, यू आर वीक। ठीक है, अच्छी डिसीजन नहीं लेती हो तुम। ठीक है, एक बार फिर वोटिंग होती है और फिर सभी जो है राल्फ को ही चुनते हैं, जैक को तब भी कोई नहीं चुनता है। अब जैक क्या है, जैक वहां से लड़के चला जाता है और अपने हंटर्स ग्रुप को वहां से लेके चला जाता है और अपना एक अलग ही कोयल को बना लेता है। सैम और एरिक भी जो है वो पहले तो राल्फ की साइड थे, लेकिन फिर बाद में वो भी उसी के पीछे चले जाते हैं, जैक के साथ ही, है ना, हंटिंग पार्टी के साथ ही वो भी चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान का जो नेचर है वो ऐसा ही है, हम अंदर से सभी जानवर ही हैं, लेकिन क्योंकि हमें सोशली रहना पड़ता है तो हम अपने अंदर के जानवर को दबा के रखते हैं। लेकिन उन बच्चों को कंट्रोल करने वाला, रिस्ट्रिक्ट करने वाला वहां पे कोई भी नहीं था। एक राल्फ ही था और पिगी था, जो दोनों उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जो हमें भी पता है।
ठीक है। इस वजह से वो अलग ग्रुप बना लेते हैं और लगभग सभी बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। राल्फ, पिगी और साइमन एक साइड में अकेले रह जाते हैं, ठीक है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो जो आग है वो नीचे ही जलाएंगे, ठीक है, ओशन के पास ही जलाएंगे, ऊपर माउंटेन पे नहीं जलाएंगे क्योंकि ऊपर जो है खतरा है, ठीक है, जैसा उनको लगता है किसी वजह से भी, ठीक है। अब साइमन जो है, साइमन ऊपर जाता है उसी टाइम पे यहाँ पे आग लगी होती है, वो वहां पे देखता है जाके। इससे पहले साइमन, इससे पहले जो जैक और उसकी पार्टी है वो क्या करती है, वो एक पिग हंट कर लेती है, ठीक है। एक पिग को मार देती है, सूरी को मार देती है, सो को मार देती है, एक्चुअली सूरी को मार देती है, और उसे लेके वो आते हैं और उसको पिगी का चश्मा वो छीन लेते हैं उनसे, और उसकी वजह से वो उस मीट को जलाते हैं, आग जलाते हैं और फिर उसको पकाना शुरू कर देते हैं। और वो जो सूरी का जो सिर है उसे एक डंडे के बीच में फंसा के उसको उस जो गुफा के पास जिसके पास उनको लगता है ना कि बीस्ट छुपा हुआ है, उसके बाहर वो रख देते हैं। एंड देन उसके मुंह के आसपास मक्खियां भिन बनाती रहती हैं, ठीक है। और वो आके नीचे अपना खाना वगैरह पकाना शुरू कर देते हैं। अब साइमन ऊपर गया हुआ है, साइमन को वो जो मक्खियों वाला जो उसका सिर था ना सो का, वो उसको देख के उसे लगता है कि ये जैसे उससे बात कर रहा हो, ठीक है। इस तरह से उसको लगता है कि वो उससे बात कर रहा है, और ही थिंक्स दैट इट इज अ लॉर्ड ऑफ फ्लाइज लगता है उसको वो। और वो उससे बोलता है कि जो बीस्ट है वो तुम लोगों के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, वो उसे यही बोलता है, उसे लगता है कि जैसे वो उससे बात कर रहा हो। तो बोलता है बीस्ट मैं नहीं हूँ, या कोई भी और बीस्ट नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं करता है कोई भी बीस्ट है यहाँ पे, लेकिन जो बीस्ट है वो तुम्हारे अंदर है, इसी वजह से वो तुम्हें बीस्ट बाहर दिखाई दे रहा है। अब इसको कंफर्म करने के लिए वो माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है। अब जब वो माउंटेन के ऊपर जाके देखता है कि वो देखता है कि वहां पे तो एक पैराशूटिस्ट पड़ा हुआ है और वो उसकी जान चली गई है, वो मर गया है, इसकी वजह से वो ही उन्हें लग रहा था कि वो वो ही एक बीस्ट है। तो वो भागता हुआ आता है कि वो उन्हें सबको बताए कि ये तो बीस्ट कुछ भी नहीं है, बीस्ट तो उनके अंदर है। लेकिन जब वो इतनी दूर से भागता हुआ आता है तो फिर उनको लगता है, बच्चों को लगता है कि ये तो ये तो बीस्ट ही आ रहा है, और वो क्या, वो सारे उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और वो उसको मार देते हैं, उसी वक्त उसको मार देते हैं, ठीक है। मीनवाइल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैक्स तो ऑलरेडी ग्रुप्स में आने शुरू कर गए थे, पिगी और राल्फ तो पहले ही अलग थे। सैम एंड एरिक हालांकि उनके साथ थे, लेकिन वो भी अंदर से वो भी जैक से डरते थे क्योंकि वो पावरफुल था, वो ज्यादा मेजोरिटी भी उसी के पास थी। अब वो क्या करते हैं, वो चारों मिलके जाते हैं, पिगी का चश्मा लेने जाते हैं उससे कि तुम हमारा चश्मा वापस कर दो, खाना तो तुम्हारा पक गया, चश्मा वापस कर दो पिगी का, ठीक है। जब वो जाके उनसे चश्मा मांगते हैं तो ऑब्वियसली वो गुस्से से मांगेंगे, लड़ेंगे उनसे। तो वो सबसे पहले जैक क्या करता है, जैक सैम और एरिक को तो बांध देता है वो पहले, ठीक है, साइड में बांध देता है कि इनको इन दोनों को बांध दो। और इनके पीछे एक बच्चा है रोजर क्या करता है, वो माउंटेन से एक पत्थर नीचे फेंकता है और वो जाके पिगी के ऊपर बजता है, पिगी की उसी टाइम पे डेथ हो जाती है। और जो कॉन शेल था जिसकी वजह से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा था, वो कॉन शेल भी उसी के टाइम पे टूट जाता है। तो जो भी वहां पे लोकतंत्र उन्होंने बनाया हुआ था राल्फ और पिगी ने थोड़ा सा, वो तो वहीं पे खत्म हो जाता है। अब राल्फ क्या करता है, राल्फ को लगता है कि ये तो मुझे भी मार देंगे, तो वो जाके जंगल में छिप जाता है। सारी रात बेचारा वो जंगल में छिपा रहता है और जैक एंड उसके हंटर जो है उसको कंटिन्यूसली ढूंढ रहे हैं। अब जैक इस प्लान के साथ आता है कि वो क्या करते हैं, वो पूरे जंगल में आग लगा देते हैं, तब तो राल्फ को बाहर आना ही पड़ेगा, ठीक है। ये उनके दिमाग में आइडिया आ जाता है। तो जो बच्चे पहले एनिमल हंटर्स थे वो अब मैन हंटर्स बन चुके थे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो पूरे जंगल में आग लगा देते हैं। एंड देन जो रैल्फ होता है, वो रैल्फ ऑब्वियसली उसे अपनी जान बचाने के लिए बाहर तो आना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वो उस सिर को डिस्ट्रॉय करता है जो वहां पे जो सूर्य का सिर उन्होंने ऐसे लटका के रखा था। उसके बाद वो ऑब्वियसली बाहर आ जाता है, वो बच्चे उसके पीछे भागते हैं उसको मारने के लिए। जो रैल्फ जो है वो भागता भागता ओशन की ओर जाता है और वो एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन जब वो ऊपर की ओर उठ के देखता है तो वो देखता है कि एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर्स वो धुआं जो उन्होंने लगा दिया था ना पूरे जंगल में, उसकी आग देख के, धुआं देख के वो वहां पे अपनी शिप को लेके आ जाता है और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है। फिर जब वो दूसरे बच्चों को आके उसके पीछे भागते हुए देखता है कि ये तो उसकी जान देने के लिए तुले हुए हैं, तो वो पूछता है, हाँ वॉइस क्या क्या चाहिए, क्या कर रहे हो तुम, खेल रहे हो, यू आर हैविंग फन। एंड देन वो रुक जाते हैं उस नेवल ऑफिसर को देख के। वो उससे पूछता है राल्फ से कि क्या बात है, क्या हुई है। वो कुछ बोल नहीं पाता है लेकिन वो रोना शुरू कर देता है। एंड देन जो जैक और उसके हंटर्स हैं वो भी उससे देख के पहले तो पीछे हट जाते हैं थोड़ा सा, फिर वो जब राल्फ होता है तो वो भी रोना शुरू कर देते हैं, जैसे जनरली बच्चे करते हैं, अगर एक बच्चा रोता है तो बाकी के बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश जो नेवल ऑफिसर्स था वो अपनी शिप की ओर देखता है मुड़ के, और फिर वो बच्चों की ओर देखता है, एंड देन इसके साथ जो हमारा नोवेल है उसकी एंडिंग यहीं भी हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कहानी समझ आ गई होगी, और अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मेरी राय आपको रहेगी कि ये नोवेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल है, नॉट ओनली फॉर नेट बट एनी अदर लिटरेचर एग्जाम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोवेल, एंड आई थिंक यू मस्ट रीड दिस नोवेल एटलीस्ट वंस इन दिस लाइफ, ठीक है। बाकी अगर आप इस वीडियो को भी ध्यान से देख लेंगे एक दो बार तो फिर आई थिंक आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर और कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। नई वीडियो में नई अपडेट, नई लिटरेचर की कहानी लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।